Viewers, good evening. In a few hours from now, we will bid farewell to 2025 and welcome the new year, that is 2026. This is the year-end special of India Front, and I plan to surrender viewers the mute button for this show tonight. Now, you can call it the ultimate act of self-sabotage, but let's see how this goes. As you know, viewers, many panelists who appear on the show keep complaining that we could not make our point. Pranesh, you muted me, you cut me off. They say this person spoke more than me. I could not finish my point. Tonight, they will have a chance to make all unfinished points. This, viewers, is the ultimate free-for-all. No script, no topic, no clock. No hold that thought. You know, when I say hold your thought, I am coming to you, I never do. So the guests will get to speak till they want to. Let them figure what it is to speak without the mute button. Maybe they will realize that it can get chaotic if more than two people talk over each other at the same time. Maybe they will have respect for the mute button, which will come back from January 1st. But tonight is their chance to settle every pending score of 2025. Now, you can call it my New Year gift to them or my year-end apology for interrupting their thoughts through the year. So let's have a freewheeling chat and end this year, or at least hope to end this year, on a prosperous note. Without any delay, let's open the panel that we have. All familiar faces. Nikhil Jain already smiling. Nikhil, आज तो प्रिंटआउट्स कम पड़ जाएंगे. जो भी पिछले साल नहीं बोल पाए, आज सब बोल देना है. Tariq Bhai there, national spokesperson of the Samajwadi Party, also in good spirits. ताला रशादी, he is also smiling. हाजी रंडरेज नाराज हैं अभी भी, उनको पता नहीं लग रहा है कि ये इस पे आज क्या हो जाए इस पे. रवि श्रीवास्तव जी, वेलकम टू द शो. JVC श्रीराम joining us and Karan Verma completes this panel. Karan, बार बार ये बोलते रहते हैं, करण वर्मा को ज्यादा बोलने देते हैं आप. आज हम इनको बोलने देंगे. नहीं, देखिए आपने प्रणेश अभी क्या बोला, वी आर बिडिंग फेयरवेल टू 2025. भाई 2025 को तो फेयरवेल हो जाएगा, पर निखिल की हिपोक्रेसी और हमारे तारिक साहब की जो सेलेक्टिविज्म है और हाजी साहब की एब्सर्डिटी, क्या उसको भी फेयरवेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं. आज इसमें कोई म्यूट बटन नहीं है, तो जिसको जब मन करे वो बोले. ये थोड़ा व्यूअर्स के लिए तो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जब या Nikhil, make your point. Okay, let me ask you, Nikhil, you know, actually, before you get started, what do you... Karan keeps on talking about. No, you can counter Karan, but just tell me one thing. You know, what was that one topic, that debate that you thought, usme, you know, you had prepared well, but Pranesh ne bolne nahi diya mujhe? Anything comes to your mind? Pranesh, as we both know, I think I do debates with you 3 to 4 times a week, and pretty much every debate is like that, so I really can't remember a particular debate, but I'm sure if I'm going to open my files, I would see a list of points that I've made in order to speak them on the debate, but I never got the chance to do that. So I can't remember of a particular debate, but if you want, I'd send you the entire list on WhatsApp. No, don't send me. ये show इसीलिए आपने मौका दिया तब भी नहीं बोल रहे हैं, फिर कंप्लेन करेंगे कि म्यूट कर दिया. अच्छा, तारिक भाई, ये मैंने सोचा कि ये नए साल में एक मेरी माफी भी हो जाएगी आप लोगों को जो नाराज रहते हैं मुझसे, और एक न्यू ईयर गिफ्ट भी हो जाएगा. देखिए हमने म्यूट नहीं किया, ये लाइट भी चली गई, माइक भी उड़ गया. क्या हो रहा है ये समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन के साथ? देखिए अब, या आपने अपने आप को ही म्यूट कर लिया है. अब देखिए ये आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है. तारिक भाई बोलिए. आवाज आ रही है. आवाज आ रही है. Now I'm really happy the idea you have came with. So this idea is really good. लेकिन बस मेरा सवाल ये है कि क्या ये परसों से फिर से वही शुरू हो जाएगा जैसे पहले होता था कि म्यूट किया जाएगा, रोका जाएगा, बोलने नहीं दिया जाएगा, और दैट वुड बी कंटिन्यूड फॉरएवर? नहीं, ये सिर्फ इक्वल एंड फेयर चांस. बस मैं ये पूछ रहा हूँ, ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आज ही क्यों दे रहे हैं आप? ये एक ही दिन का ऑफर है. ये एक ही दिन का है. It's not a New Year resolution, huh? It's a one-day resolution. हाँ, one-day resolution. तारा रशादी, आप भी नाराज रहते हैं मुझसे. कितने बार तो शो में बीच में उठ के आप चले जाते हैं कि प्रणेश बोलने नहीं देते.
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नाराजगी नहीं होती, ठीक है। इट्स हीट ऑफ द मोमेंट में कभी कुछ हो गया। अदरवाइज आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई रेगुलरली कीप ऑन कमिंग ऑन योर शोज। बस कभी कभार लगता है कि बिकम्स बायस्ड, और जब लगता है तो ठीक है, अपनी आउटरेज आदमी अपना रखता है, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। आज जो भी आउटरेज है ताला रशादी, आज आप सब आउटरेज एक साथ, वो जो बोलते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, सूद समेत आज आप रख दीजिए टीवी पे। नहीं, आई अप्रिशिएट द आइडिया, द कोर आइडिया ऑफ दिस शो, दैट यू आर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू bust out each and every sort of feelings and the moments and everything. तो बस इस आइडिया का सामने आना ही अपने आप, इट्स नथिंग पर्सनल। तो ये आइडिया आपने रख दिया, एवरीथिंग इज फेयर। अरे सर, सारी बदगुमानी, सारी शिकायतें खत्म। थैंक यू। रवि श्रीवास्तव जी कुछ बोल रहे हैं, सर बोलिए। प्रणेश बहुत अच्छी बात है। आई बिलीव इन लिव इन द मोमेंट। आपने एक दिन तो मौका दिया, अगर एक दिन भी मौका दिया तो हमारे लिए बहुत है। हमारे लिए 364 दिन तक आप जो करते हो वो करते रहना। एक दिन मौका दिया तो जो दिल में आएगा वो बोलेंगे, और खुल के बोलेंगे। जो कहना चाहते थे नहीं कह पाए वो कहेंगे। बिल्कुल। तो चालू करिए, आप शुरू करते हैं। एक प्रणेश, मैं एक बात बताऊं, वैसे रवि जी जो है, इज मोर जेनजी देन जेनजी। ये जो है ना, लिव इन द मोमेंट, यू ओनली लिव वंस, ये अगला योलो शर्ट्स ना पहन के आने लग जाए। एंड रवि जी वैसे भी जो उनको ठीक लगता है बोलते हैं, वो सोचते नहीं है वैसे भी बोलने से पहले। इसलिए रवि जी ऐसा मत बोलिए भाई, आपके जो दिल में आता है वो होता है हमेशा टीवी पे। ये मत कहिए कि आपको रोका जाता है कभी भी। कौन रोक सकता है रवि श्रीवास्तव जी को? कौन रोक सकता है? सूरज को कोई नहीं रोक सकता, वैसे ही रवि है भाई, नाम कोई नहीं रोक सकता उनको। हाजी रंगड़े साहब, आज आपको खुद को नहीं रोकना है, आज आप जहां तक जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। देखिए पन्नेश भाई, आप तो मुझे हमेशा ही पूरा मौका देते हैं, और मैं अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से और आपसे बात रखता हूँ, बड़ी मोहब्बत से, प्यार से। हम दोनों भाई मिलके, आप अपना पक्ष रखते हैं, मैं अपना पक्ष रखता हूँ। मेरे को तो कोई भी कभी कोई शिकायत ही नहीं रही, मगर बस एक शिकायत है आपसे कि आप जब हम बोलते हैं तो बीच में टोकते हैं, रोकते हैं। बस इसे थोड़ा सा नए साल के अंदर जो है इसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, और सबको पूरा मौका दीजिएगा, सब लोग अपनी बात रख सकें, और बात रखने के लिए अपना समय निकालते हैं और आपके साथ जुड़ते हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि लगातार आप जो है, जो बीच में टोका टाकी है वो ना ये देखिए आपने, मैंने सोचा आप आज फ्रंट फुट पे बैटिंग करेंगे, आपने फिर से वो विक्टिम कार्ड निकाल दिया। अरे आज तो हाजी साहब, आज तो खुश हो जाइए, आज कोई म्यूट बटन नहीं है। आपको जो बोला, आपको किस पे बोलना चाहते हैं आप बोलिए। राहुल गांधी पे आप बोलना चाहते हैं, जननायक राहुल गांधी, आप उस पे आप सोचिए कि क्लास में टीचर ने कहा है कि आप इस टॉपिक पे बोलो, आपने चिट उठा ली, उस पे लिखा है माय लीडर राहुल गांधी, आप बोलिए उस पे 5 मिनट। इस क्लास का टीचर कौन है? आप हैं? नहीं, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं तारिक भाई, मैं टीचर टीचर कौन है? करण की आप दोनों में से कौन है भाई? आप ही हैं टीचर। सर टीचर वो हैं जो व्यूअर्स हैं हमारे, वो है टीचर भी वही है, प्रिंसिपल भी वही है। हाजी साहब आप बोलिए। राहुल गांधी पे हमने बहुत सारे डिबेट्स किए हैं, आप उस पर ठीक से बोल नहीं पाते, कभी आपके मन में कुछ बात रह गई होगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि राहुल गांधी तैयार नहीं है, उनको संन्यास ले लेना चाहिए, उनसे फुल टाइम पॉलिटिक्स होती नहीं है। और ये कोई बीजेपी के लोग जरूरी नहीं है सिर्फ वही कहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, शिवसेना के नेता हैं, एनसीपी के लोग हैं जो कहते हैं कि देखिए पार्ट टाइम पॉलिटिक्स अब नहीं चलेगी देश में। क्या सोचते हैं आप? देखिए पन्नेश भाई, जिस तरीके से जननायक राहुल गांधी जी ने लगातार त्याग और जो त्याग देकर, उन्होंने हर चीज से त्याग देकर, जिस तरीके से इस देश के चारों कोने हिंदुस्तान की, और आपने देखा होगा कैसे उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे देश का, उन्होंने पूरे देश की गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक वो पहुंचे, लोगों तक अपना जुड़ाव बनाया, कैसे लोगों तक समन्वय बनाया, देश के हर एक वर्ग के साथ में मिलकर उन्होंने काम किया, हर एक वर्ग के लोगों की समस्या वो जानते हैं, पूछते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि मैं सदन के अंदर वो बात रख सकूं। मगर भाजपा की सरकार उनको, उनकी बातें अधिकतर तौर पर जब वो बोलते हैं तो बाइकआउट कर देते हैं, या तो सदन के अंदर या किसी भी तरीके से उनकी बात को जब तक हम देखिए, दो चीजें हैं हमारे देश में। अगर मीडिया जिस तरीके से 2014 से पहले मीडिया सवाल पूछता था, जो पार्टी उसमें होती थी, सत्ता में होती थी, और विपक्ष का समर्थन करता हुआ दिखाई देता था, सब विपक्ष के सवाल भी बीजेपी से पूछता था, जब
मगर अब जो पैटर्न बदला है उसके अंदर राहुल गांधी जी को जिस तरीके से डैशागिरी किया जा रहा है, जिस तरीके से उनकी बातों को नहीं दिखाया जाता, उनकी बातें जो है कौन सी ऐसी बात है हाजी रंगरेज साहब राहुल गांधी की जो नहीं दिखाते? हम तो हर रोज ही डिबेट करते हैं राहुल गांधी पे, आप तो रहते हैं उस डिबेट्स में। कौन सी ऐसी बात है राहुल गांधी की जो नहीं दिखा रहे, हम बताइए। नहीं, राहुल गांधी जी ने इतने देश के अंदर इतने ज्वलनशील मुद्दे उठाए, वोट चोरी का मुद्दा इतना बड़ा उठाया, जिस तरीके से वो लगातार अब अरावली के ऊपर और लगातार वो हर एक वर्ग के लिए जिस तरीके से उन्होंने, अभी आपने देखा होगा कैसे बिहार के अंदर भी लोग कहते हैं कि वो मेहनत नहीं करते। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी से मेहनत और उनसे पढ़ा लिखा आदमी, जननायक आदमी कोई हो ही नहीं सकता। उनसे हर फील्ड के, आप ये देखिए ना वो कैसे वर्गों से मिलते हैं, कैसे सब समाज के लोगों के साथ अभी भी लगातार उनकी लगातार मीटिंग होती है। सही बात है, वो जर्मनी में भी मीटिंग करके आए हैं, देश के कोने में ही नहीं, वो विदेश का कोई कोना नहीं छोड़ रहे हैं राहुल गांधी। हाजी रंगरेज साहब, आप तो कश्मीर टू कन्याकुमारी बोल रहे हैं, वो तो भारत टू बर्लिन चले गए हैं। अब जेवीसी श्रीराम जो इतना लोगों के बीच में वो भी जाते हैं, स्टडी करते हैं वोटिंग पैटर्न्स, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। जेवीसी, वेलकम। You know, I thought people who usually have, complaints, concerns, they say that, I don't let them speak. So they are some of my favorite people. They are all on the panel, fortunately all smiling faces so far. But Haji Rangrej is saying Rahul Gandhi is not being projected in the right light. No, see, I have a complaint against you, Pranesh. You allow only people from the other side, like, the Samajwadi Party, Congress people to speak, and you don't let people like us to speak much. Today, you need to be stand corrected. Now, my question is, what happened to those vote chori? What happened to those Rahul Gandhi gets repackaged? All those things, what they were talking about. So, we are on the year end. The new year is going to dawn upon us. So how are they going to repackage Rahul Gandhi? What is that they have? You said Bharat to Berlin. Probably, is he becoming an international figure now? He is no more a Jan Nayak. He is a Lok Nayak, or probably the world Nayak. What is the agenda that they have? And why is it that you are letting only, the people who support left to speak more, and people like us? Now, I have it from both sides. Now, what do I do? I know you didn't answer. JVC Sriram is complaining that I don't let him speak. Nikhil? No, this is incorrect. This is incorrect. I think Pranesh JVC is being that bully that even though the entire side tends to favor him, he tends to think that nobody lets him speak. Come on, JVC, you've probably spoken more than me, Karan, and everybody combined. You get all the airtime from every angle, not just election Pranesh, days. Pranesh, on the point that JVC raised that how he will allows me Rahul to Gandhi... speak on election days and exit poll day. Remaining days, no. Absolutely. Remaining days, no. He doesn't allow me. That's the truth. No, but Pranesh, why is Haji ji not smiling today? Why is he so serious? So पता नहीं, ये तो this is a good observation. When he goes abroad. मैं बताऊं आपको, नहीं, रवि श्रीवास्तव जी कुछ कह. It's been a very tough year for Haji साहब. नहीं, अच्छा Pranesh, can I make the point that I wanted to make? Please, go on, don't ask me. आप एक बात, Yeah, so JVC asked this question that how is the opposition and all the left, the entire left, how are they going to, repackage Rahul Gandhi? And I think the answer to that is that you don't need repackaging of Rahul Gandhi. What you need is the correct and complete depiction of him. So just to give you an example, Pranesh, so my friend Rangrej had this problem that, Congress is not being shown enough on television, or Rahul Gandhi, what he says is not being discussed enough. My problem is slightly different. Like you pointed out that Rahul Gandhi raised this issue of vote chori, and you raised the issue of vote chori, and everybody did. The problem is that when Rahul Gandhi does a 1-hour press conference on vote chori, gives a bunch of proofs, asks a bunch of questions, the media does cover the press conference, but the media doesn't cover the questions, the important questions that he's asking. Everybody tries to find a particular fault with what Rahul Gandhi has said in terms of, this voter was available at this place, and how does he know that a person voted twice? Nobody is asking questions of the election commission. Nobody is asking questions of the election commission that what did you do of the 20,000 affidavits that the Samajwadi Party gave you?
what did you do of the formal official complaint that the Congress party gave you on the 8th of August? No, so Nikhil, you Nobody think really media, asked questions to it power. is because Our of... problem has now become Okay, that so we're Nikhil, always questioning Rahul Gandhi. you think it is because of a biased media that, you know, the Congress party has not been able to revive its electoral fortunes? No, I'm not going to that's not the simplify it in that point simple here terms. is The Congress that party is there not is being a- able to revive its fortunes because it has Nikhil, poor organization, because Pranesh, I have the a question to BJP Nikhil. quite literally has 100 times the amount of money that the Congress does. Of course, the media and other parts of the system are tilted in favor of the BJP. Now, there are a number of reasons to it. For me to sit here and pin the entire blame on media, that will be very disingenuous. Of course, I do consider the media, legacy media at least, as a part of the problem, but it can't be all of the problem. And part of the problem does exist within the Congress party. I want to be honest with you. Bhai, This ye is the ek, last no, meeting tell me of- something. and I- What is you know, this I thing just about don't want to legacy do media? this 1 minute. If out there and can out be bickering with it. legacy politicians, ये legacy media से क्या problem है? अरे मुझे लेगेसी मीडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है. माई ओनली प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी लेगेसी मीडिया. आई एम सिटिंग ऑन अ चैनल लाइक दैट हियर. Okay. My problem is with that a lot of journalists, anchors and editors in Pranesh, various legacy Pranesh, media I want to outlets ask, are only Pranesh. looking at things with a certain lens. वो That whenever JVC the opposition Sri does Ram has press a question, conference, उसके बाद they करण try भी to कुछ बोल find a रहे हैं. loophole in what is being said Yes, instead sir. of trying to question those in power. Pranesh, I want to ask Nikhil Jain a question. To so many complaints. When the SIR was done at Bihar, how many booth level agents of Congress party or RJD lodged complaints for deletion or inclusion? Did they? Every day the election commission was publishing the same in the Twitter and also in the Panchayat offices and various places. What were they doing? This, no, Even no, in Tamil Nadu right this now. answer to in this Tamil Nadu question right will now, come in 2027. 97 lakh voters Not in have been 2025, complaints. not in the next year. रवि श्रीवास्तव जी, मैं आ रहा हूं आपके पास. Answer to me बा, this हाजी, question. नो सर, ये सीरियस क्यों है भाई? ये मुझे हाजी बताओ। रंगरेज, तारिक भाई मुस्कुरा रहे हैं, ताला रशादी को हंसी आ रही है, एटलीस्ट ही इज हैप्पी. आप क्यों नाराज हैं? बहुत नाराज हैं। क्या कोई प्रॉब्लम है? मैं नाराज नहीं हूं. मैं बड़े गौर से सारी सब लोगों की, भाइयों की अपनी बातें सुन रहा हूं. क्या क्या मेरे भाई क्या क्या बातें कर रहे हैं, उनको सब कुछ समझ रहा हूं कि उनकी एक एक बात में कितने तर्क हैं और कितनी अच्छी बातें आज हो रही हैं. सबको करण ऐसा कह रहे हैं कि हाजी रंगरेज साहब के लिए ये जो पिछला साल था. आपकी इजाजत तो एक चीज मैं बताना चाहता हूं सबको. देखिए, इनके लिए बहुत कठिन रहा है प्रणेश साल. आपको मैं बताऊं, आज से 2 महीने पहले तक इनका जो एक्स प्रोफाइल था उस पर इन्होंने लिख रखा था ओवैसी का परिवार. मोदी का परिवार चला था, इन्होंने कहा ओवैसी का परिवार. और फिर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी, अब वो हो गया राहुल गांधी का परिवार. मतलब ये सबको अपना परिवार मान रहे हैं. लोग क्यों नहीं इनको अपना परिवार मान रहे भाई? इनको मिलनी चाहिए थी दिल्ली से टिकट. मैं तो साफ कह रहा हूं, इनको AIMIM ने हाई एंड ड्राई छोड़ दिया. नहीं, इनको टिकट दिया था, इन्होंने बोला कि वोट चोरी हो रही है, मैं टिकट लेके करूंगा क्या? नहीं, ये गलत हुआ. मैं तो कहता हूं इनके साथ नाइंसाफी हुई. हाजी साहब, मैं आपके साथ हूं, ये आपको पता है. मैं आपको दोस्त मानता हूं. आपके साथ बुरा हुआ ये मैं मानता हूं 2025 में, और इंशाअल्लाह 2026 में अच्छा होगा आपके साथ. बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह आप सब भाइयों की दुआ रहेगी और आप सब लोगों का साथ रहेगा. ऐसी मोहब्बत रहेगी, सब कुछ अच्छा इलेक्शन. हाजी साहब को रेडी नहीं बोलने दे रहे. देखिए, हाँ, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ. आज कुछ नहीं बोल रहा हूं. मैं तो चाहता हूं कि जब ये शो लोग देखें तो खुद जज करें कि प्रणेश सही करता है म्यूट बटन यूज इस्तेमाल करके कि हाजी नहीं. साहब का पर पूछे तो दर्द जो हुआ इनको बताएं जरा क्या है. वो खुद ही म्यूट हो गए आज हाजी साहब. हाँ रवि सर बोलिए. नहीं मैं म्यूट नहीं हूँ. एक स्टेटमेंट दे रहा हूं. मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने अंजलि भारद्वाज की RTI रिक्वेस्ट पर यह ऑर्डर दिया कि हमने SIR के लिए हम ऑथोराइज नहीं है, हमने SIR के लिए कोई परमिशन ही नहीं दी है. क्यों ऐसा रिप्लाई दिया इलेक्शन कमीशन ने? सर तो ये तो नहीं, तो इस पे तो SIR हो रही जो है, भी तो ऐसा लग रहा है जैसे देश में आग लगी हुई है. सर ये जब ये आप लोग वेट कर लिए SIR पे, रवि जी आज भी चाह रहे हैं. नहीं, कोई बात नहीं, उनको कोई आज पूरा फ्रीडम है. करने के लिए फायर फाइटिंग करने की क्या जरूरत है? नहीं तो सर ये तो आप इलेक्शन कमीशन अगर आपको लगता है सही जवाब नहीं दे रही है तो उनको कोर्ट में लेके जाइए. आप लोग तो कोर्ट के आगे भी चले जाते हैं, कभी कभी यूनाइटेड नेशंस में भी पिटीशन चले जाता है. आप लिखिए
मैं बस तारिक भाई से पूछना चाहता हूं, तारिक भाई, साल भर जो हमने बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा की, डिबेट्स किए, आपको क्या लगता है कोई ऐसा डिबेट जो आपके जहन में हो जिसमें आपको लगा कि ऑपोजिशन अपनी बात ठीक से नहीं रख पाया? थोड़ा 30 सेकेंड्स और मिलता तो। नहीं, ऐसा तो आप ज्यादातर आप ये करते ही हैं कि थोड़ा समय और मिलता तो वी वुड बी एबल टू पुट थिंग्स इन अ बेटर वे। लेकिन मैं करण से भी कहना चाहूंगा, ये कह रहे थे कि रंगरेज भाई को टिकट मिले, तो क्या करण आप प्रचार के लिए जाएंगे रंगरेज भाई के लिए? मैं तो बिल्कुल जाऊंगा, मैं पक्का कैंपेन जाऊंगा। करना पड़ेगा। हाजी साहब, प्रॉमिस, गिव अ प्रॉमिस। प्रॉमिस, अगर हाजी साहब कैंपेन करेंगे, अरे तो फिर आप कांग्रेस के लिए कैंपेन मैं बस एक मिनट, करण प्रॉमिस करे, उससे पहले करण से आप प्रॉमिस ले, मैं चाहता हूं कि आप हाजी रंगरेज से प्रॉमिस ले लीजिए कि 3 महीने बाद भी ये कांग्रेस में रहेंगे। कहीं मोदी का परिवार ना लिख देंगे, मेरी यही प्रिडिक्शन है, मैं यही बोलने जा रहा था। कहीं पता लगा ओवैसी का परिवार, राहुल गांधी का परिवार है, मोदी का परिवार लिख दिया इन्होंने 3 महीने। हम लोग फंस जाएंगे कि हम लोग कैसे प्रचार करेंगे। तभी मैं कह रहा हूं, मैं जरूर जाऊंगा। फंसा रहेगा कि कौन प्रचार कैसे करेगा। तो फिलहाल हाजी साहब इज द स्टार ऑफ द पैनल, प्रचार करना पड़ेगा इनको भाई। मैं तो बहुत फ्री हूँ कांग्रेस का प्रचार करने के लिए। प्रणेश, आप हम तारिक भाई प्रणेश, आप तारिक भाई, मैं एक बात नहीं, रवि श्रीवास्तव कुछ बोल रहे हैं, रुक जाइए हाजी साहब, 1 मिनट। मैं कह रहा हूं, 1 मिनट हाजी साहब, 1 भाई भी मिनट, मेरे प्रचार के लिए आएंगे। 1 मिनट। मैं क्या कह रहा हूं, प्रणेश भाई भी अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो नहीं, प्रणेश मुझे रोहित जोड़ साहब भी मेरे चुनाव प्रचार में आएंगे। नहीं, 1 मिनट हाजी, अरे हाजी साहब 1 मिनट, रवि श्रीवास्तव जी कुछ बोल रहे हैं, रवि श्रीवास्तव जी को सुन लेते। सर बोलिए। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि प्रणेश, आप अपोजिशन को ऐसे ही दबाते हैं, बिल्कुल जैसे पार्लियामेंट के अंदर रूलिंग पार्टी अपोजिशन को दबाती है। बिल्कुल वही हाल है। वहां पर दूसरी तरकीब यूज होती है, यहां पर आप बीच बीच में इंटरेक्ट कर करके आते हैं। वहां पर क्या होता है कि उनके खिलाफ जो मुंह खोले उसके खिलाफ ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, रेड कर दो, इनको मुंह मत खोलने दो। इनको मुद्दे जो असली देश के हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उन मुद्दों के ऊपर बात मत करने दो। कैसे भी करके आज डिबेट जनगण मन के ऊपर होगी, आज वंदे मातरम पर होगी, आज शुभ्रांशु शुक्ला पर उनको फेलिसिटेट किया जाएगा। अरे भाई, ये मुद्दे क्या पार्लियामेंट के लिए? तो मुझे एक नहीं तो रवि श्रीवास्तव जी, एक बात मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 2-3 मिनट का समय लीजिए और एक लिस्ट बना लीजिए कि इन मुद्दों पे डिबेट्स नहीं होनी चाहिए। हम एक पैनल पे भी कंसेंसस बना लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा। नहीं चाहते प्रणेश, ये चाहते पता है क्या? रवि जी, एक बात बोल लूं भाई, मैं लिस्ट बनाऊंगा जिन मुद्दों पे डिबेट होनी चाहिए। हाँ, वो भी बनाइए आप हर सुबह इनको फोन किया करो, पे डिबेट होनी चाहिए। नहीं, रवि जी चाहते। अरे रवि जी सुन तो लीजिए। 6 लाख 15 एक सेकेंड मेरी भी सुन लीजिए भाई। 6 करोड़ 15 लाख रुपए आपने राइट ऑफ कर दिए बिजनेसमैन के, उसका क्या जस्टिफिकेशन है? वो टैक्स पेयर्स का पैसा था, कोई डिबेट नहीं है उसके अभी ऊपर। देखिए, ये अनम्यूट एडिशन में ताला भाई अभी तक 10 सेकेंड नहीं बोल पाए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देखिए, आपकी डिबेट जो है ना प्रणेश, बहुत अच्छी है भाई। म्यूट बटन की वैल्यू क्या है? जब रवि जी बोलते हैं तो लोगों को पता लगता है म्यूट बटन का महत्व क्या है। अच्छा हुआ आपने ऐसे कराया। रवि जी बोलते ही जाइए, आप और बोलिए। अरे क्या महत्व है म्यूट बटन का? देखो, म्यूट बटन से पार्लियामेंट नहीं चलती है। आप कितना ही म्यूट बटन दबा लीजिए, जनता जवाब देती है। सर वो तो ठीक है, जनता तो जवाब देती है, लेकिन जब जनता बात सुनेगी तब तो समझ ही नहीं आता लोगों को। आपने असर नहीं पड़ता। अच्छा, ताला रशादी को बोलने दीजिए प्लीज। ताला रशादी आएगा सर, आएगा। नहीं, एक मुस्लिम वॉइस को मत दबाइए प्लीज। हाँ, ताला रशादी जी को बोलने दीजिए। ये गलत बात है भाई, माइनॉरिटीज का सम्मान नहीं, हमने रिप्रेजेंटेशन में भी कोई कमी नहीं रखी है। हाजी रंगरेज, तारिक भाई, ताला भाई सब हैं। देखिए, गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड आई वेरी हैप्पी न्यू ईयर अहेड। और मैं उम्मीद करता हूं जो रेजोल्यूशन वन डे दैट बिकम्स अ होल ईयर रेजोल्यूशन, ये मेरी एक राय भी होगी। और जैसा कि करण भाई आज एक वन लाइनर्स बहुत मार रहे हैं, अभी इन्होंने कहा कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है, मुस्लिम आवाज है, माइनॉरिटी की आवाज नहीं दबना चाहिए। तो आई थिंक आई शुड स्टार्ट माय पॉइंट विद माय कम्युनिटीज। जो एक रिव्यू अपनी कम्युनिटी का साल भर करा, आई थिंक आई शुड स्टार्ट विद दैट। आई थिंक फॉर इंडियन मुस्लिम्स 2025 was less a year and more of a test of faith, patience and belonging, and politically sidelined, socially scrutinized and policy wise overlooked. The community lived between hope and heart. Identity became a headline
rights of footnote and justice and endless wait. So this was my review of 2025 for Indian Muslims. But there's a hope, there's umeed. Yet through fear, fatigue, and frustration, Indian Muslims held on to dignity, to democracy, and to the basic idea of India itself. So ये एक positive note है. The year may have judged them harshly, but it also revealed their quiet courage, and that's a positive sign. बट ताला भाई, ये आप जो बार बार बोलते हैं इंडियन मुस्लिम, मुझे एक बात समझाइए कि इंडियन मुस्लिम क्या ऐसा व्यक्ति जो सपोज बीजेपी के विचारधारा को सपोर्ट कर दे या इंडोर्स कर दे, क्या उसको भी आप इंडियन मुस्लिम में काउंट करेंगे या उसको सरकारी मुसलमान कहते हैं जैसे आप लोग कहते हैं? देखिए, there's a difference between बीजेपी का मुसलमान है ना सरकारी मुसलमान. सरकारी मुसलमान जो कहते हैं वो उन्हें कहते हैं जो उस पे पेरोल पे हो, बीजेपी की चाहे आरएसएस पे. आप अगर कोई मुसलमान बीजेपी में, आई हैव नो इश्यूज विद हिम. आप बीजेपी, बल्कि इनफैक्ट अगर मेरे दिल की बात मैं कहूं, बिकॉज फेयर एंड फ्रैंक डिबेट हो रही है, मैं इस बात को बहुत फर्मली बिलीव करता हूं कि द माइनॉरिटीज, द मुस्लिम्स शुड बी इन बीजेपी. दे शुड. कोई ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल पॉलिसीज, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की लड़ाई है. अगर ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है तो मुसलमान यहाँ हाजी साहब को आप लोग राहुल गांधी का बैट्समैन बना रहे हैं, लगातार पिच पे खिला रहे हैं, या तारिक भाई यहाँ पे एसपी के रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये भी गलत होता है. अगर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई पॉलिसीज की, अगर कोई मुसलमान बीजेपी में रहकर ईमानदारी से माइनॉरिटीज के इश्यूज को रेस करता है, उसको ईमानदारी से रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है. तो ताला भाई, अगर ये सब बात सही है तो फिर किसी को सरकारी मुसलमान क्यों बोलना या प्राइवेट मुसलमान? ये तो हम किसी की इंसल्ट कर रहे हैं. नहीं, ताला जी ने देखिए, ताला जी एक बात भाई, आपकी इजाजत से एक बात आपकी इजाजत से, इन्होंने बात अभी बोली भाई कि भारतीय मुस्लिम के बारे में बोली. मैं इनसे आज चाहता हूं भाई, 2026 शुरू हो रहा है, ये जरा हमें डिफाइन कर दें. क्या भारतीय मुसलमान औरंगजेब, बाबर इनके साथ खड़ा है, या एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ब्रिगेडियर उस्मान इनके साथ खड़ा है? वंस एंड फॉर ऑल इसको क्लियर कर दीजिए, क्योंकि साल भर आप औरंगजेब को डिफेंड करते रहे, साल भर औरंगजेब के कसीदे पढ़ते रहे, तो 26 में बाय बाय कर रहे हैं औरंगजेब, बाबर को. ताला रशादी ने औरंगजेब को डिफेंड नहीं किया, वो औरंगजेब को नहीं माना. जवाब दूं अगर सवाल हो गया. प्लीज नीचे इंटरप्ट मत कीजिएगा. आज आपने वादा किया है, हो सकता है शायद 1 मिनट पहुंच जाए. प्लीज लेट मी अलाउ मी टू रिस्पॉन्ड. देखिए, यहाँ 3 मुसलमान बैठे हुए हैं इसमें, और अभी तक मेरे ख्याल से 20-25 मिनट हो गया. एक मुसलमान ने बाबर, औरंगजेब, ये वो, मैं वही कहता हूँ कि सर प्लीज अलाउ मी टू रिपीट कर लीजिएगा प्लीज. मैंने यही कहा कि बीजेपी और जो इकोसिस्टम है आरएसएस का, दे आर बैडली ऑब्सेस्ड विद मुगल्स, विद बाबर, विद औरंगजेब. तारिक भाई ने या हाजी साहब ने कोई नाम लिया औरंगजेब या मुगल या किसी का, तो चाहते ही नहीं. दैट इज द पास्ट, दैट इज हिस्ट्री. वो हमारे कुछ नहीं लगते थे. मेरे बाप दादा, आप सुनिए, ब्रिगेडियर उस्मान का आपने नाम लिया. ब्रिगेडियर उस्मान मेरे सगे परनाना थे. सर बात पूरी हो जानी थी सर प्लीज. ब्रिगेडियर उस्मान मेरे सगे परनाना थे, मेरे दादा सगे पर. अरे सर बोल दीजिए प्लीज. फिर वही बात होती है, आप बात फिर 1 मिनट दे दीजिए ना. आज मैं कितनी 20 मिनट सुना. मैं कह रहा हूँ ब्रिगेडियर उस्मान वाज माय सगा नाना, मेरे ग्रैंडफादर सगे फ्रीडम फाइटर थे, सगे ग्रैंडफादर. तो मेरे खून में मेरे दादाओं ने धरती, इस जमीन को आजाद कराने के लिए अपनी जानें, अपनी सब कुछ कुर्बान किया है. तो मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि when someone who has a legacy of 52 years of not raising तिरंगा, they tell me कि खड़े होइए और वंदे मातरम बोलिए. ताला भाई, मैं आपको बताता हूं, जैसे आप कह रहे हैं कि आपके नाना जी थे, ग्रेट ग्रैंडफादर थे, नहीं 52 इयर्स तक आप जो लेगेसी बोल रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, अगर कोई औरंगजेब के लेगेसी को, वो टिरनी और ब्लडी लेगेसी को अगर कोई डिफेंड करे, तो किसी दूसरे को भी तो गुस्सा आ सकता है, जैसे आपको आ गया. ओवैसी उनकी कब्र पे जाके फतिया पढ़ते हैं. उनको बोलिए ना, कौन डिफेंड कर रहा है? यही तो प्रॉब्लम है ना. अभी आप देख लीजिए, तारिक भाई, औरंगजेब को डिफेंड करने वाले लोग, क्या वो भी इंडियन मुस्लिम कहलाएंगे कि क्या कहलाएंगे? कितनी बार सपा स्पोक्स पर्सन से हुई है बहस हमारी. लास्ट पॉइंट, अमीर साहब से बहस हुई थी, हाजी साहब से बहस हुई है औरंगजेब पे. बोलिए 15 सेकंड.
जब स्त्री की बात होगी तो अगर औरंगजेब की टारेनी की बात होगी तो औरंगजेब की उस बात की बात भी होगी जब उसने मंदिर को ग्रास दिया था। हाँ, जब ये उसने देखिए, ये शादी की देखिए। ब्राह्मणों को, जब उसने हिंदू देखिए, ये white wash करना start। सरकारी तनख्वाह दी थी। मैं वो देखिए नहीं देखिए कर रहा हूं, प्रणेश, ये नहीं मैं बर्दाश्त कर हो रहा हूं। सकती बात। जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर गिराया, ये कह रहे देखो उन्होंने उसने मंदिर बनवाए भी थे, फंड दिए थे। बहुत बढ़िया, वही बात हो गई ना, बुरहान वानी हेडमास्टर का बेटा था, हिटलर पेंटर बहुत अच्छा था। जो आपको पसंद आ, आपको हिस्ट्री की खराब बातें भी बर्दाश्त करनी होगी। वाह, आप बर्दाश्त वाह, कर रहे हैं ना? रमेश भाई कहना कोई एक मारे, कोई एक मंदिर तोड़े, पर उसकी अच्छाई ढूंढो उसके अंदर। प्रणेश, ये दिक्कत है अभी जो हो गई आपके सामने। आई एम सो ग्लैड तालाजी ने बोल दिया ये बात अभी। Pranesh, can I come in, please? Nikhil, who stopped you? This is a free for all. Don't ask me. प्रणेश बोलते रहिए। 10 सेकंड प्रणेश 10 It's a सेकंड free- नहीं बोलते it's नहीं a रहिए debate सभी without a लोग mute button. That doesn't mean I want to speak over other people. No, My no, point no. is simple. We were having a Pranesh. debate about topics of political relevance, but Karan, my good friend, somehow felt the need to bring in the Mughals and Aurangzeb and It's a Babur fact. and all of He that. brought And in this Indian is one of the Muslims. primary problems I He have. with brought the in discourse Indian of Muslims. Nikhil, what is the problem That if he's instead talking of about talking Mughals? about Why what should is happening Mughals in be, 2025 you and know? what will happen in 2026? No, but why? Why Instead of this special talking status about to Mughals? Arabis, Kuldeep Sengar, No, 1 minute. Election Commission. Yeah, advice, talk all about about Singer, Muslims. anything And else, all the anyone other else things that are under the sun, plaguing us Nikhil. today. My But good friend why have Karan this talks about reservation the that man let's who not was talk died about Mughals? 320 Why? years ago. Why should we not talk Right, about Aurangzeb Aurangzeb? is Now, by this irrelevant. logic, Let's I'll not tell you, talk about I'll tell you the man who died fallacy. 320 I'll tell you the years ago. fallacy Good or of bad, Tala I have Rashadi's a argument. saying he's a type ताला of भाई ये point कह is रहे हैं why कि does he देखिए want to say that? Why औरंगजेब does ने he मंदिर not बनाए भी. want to talk about Hafiz things that are Saeed relevant runs the today? biggest charity organization there, the so-called charity organization in Pakistan. What is he? Is he some philanthropist? टेररिस्ट, बात खत्म हो गई। He's a Philanthropist है या terrorist. terrorist है वो? खत्म बात। वो ताला. He says that to me or Can I somebody come? else? Sir, you have Can I come say already. something, please? Can I come? तारिक भाई बोल रहे हैं. तारिक भाई. Also, can I answer what Please. JVC was मैं ये asking? कह रहा हूँ what I want to say Tariq bhai, if I may, हमेशा can I please just answer on something that JVC asked? yes please बोलिए देखिए आपसी में समन्वय नहीं बैठ रहा है इनका। बोलिए Thank बोलिए। you so much, Tariq bhai. So, Can I come, please? Pranesh, can I come? thank you so much. Thank you so much. So, see, JVC, when I'm talking about the press conference, Karan should become a stand-up comedian, I And think. answer will not come. करण भाई 2026 में आप स्टैंड अप कॉमेडियन का रोल चलिए, शुरू ठीक है, कीजिए। करेंगे, This doesn't suit you. अच्छी This doesn't suit you. डन डन डन। I am sure Karan can do that. I'm sure Karan can do that. चलिए, ठीक। Anyhow, so JVC, the point is that when the leader of opposition raises a bunch of questions against the Pranesh, can Election I- Commission of India, the body that is tasked with conducting free and fair elections, he points out a bunch of irregularities. As a pollster, as a television panelist, as a concerned citizen, what is your question? Your question is, why did the opposition parties, BLAs, not act? Let's for a moment assume they did not act. But is it their job to conduct free and fair elections? They are additional pillars of check. They are not the core you pillars are of so check. stuck It's in like when I go 2025. to the police to lodge a complaint of theft in my house, the police says आपने दरवाजा फंस क्यों गया है नहीं निखिल। करा? निखिल हाँ साहब, भाई, ये मेरी रुक गया गलती है, मैंने 2025 दरवाजा में। बंद नहीं करा था, मैं नया careless साल था। आ गया, But निखिल। that doesn't mean the police doesn't need to investigate a God. theft that has happened. That doesn't mean that the chore नहीं, did not मैंने- do पूरे any साल यही चोरी. बोल रहा है निखिल। You get into it. You should be asking questions of the people who are Shake in him up. power. It's 2026. मैंने long शुरू can में you कहा keep on था asking कि जो भी questions of the अनफिनिश्ड opposition? I'm पॉइंट्स here हैं वो admitting that बोलिए. the opposition is निखिल failing has on a lot of taken it fronts. too seriously. Congress party included. तारिक भाई को भी बोलने दीजिए please. बोलने दीजिए भाई तारिक भाई को। मेरे हाथ में by the way you know whether this show no 1 minute मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो हमारे पैनलिस्ट हैं रेस्पेक्टेड और जो डियर व्यूअर्स if you don't like this format I apologize, you know, this I am doing only to underline the importance of, you know, moderation and the importance of the mute button. एक छोटी सी बात प्रणेश, एक चैनल पे पता लग जाती है हमें इंपॉर्टेंस ऑफ Pranesh, I hope मॉडरेशन। this is the उस पे most तारिक साहब viral भी and आते हैं, most मैं भी watched आता that you have, so हूँ, that निखिल I भी can आते हैं, continue. उसके बाद हमें पता लग जाता है मॉडरेशन की वैल्यू क्या है। बोलिए बोलिए। तारिक भाई बोल रहे हैं। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं आई ऑलवेज स्पीक विद योर ड्यू परमिशन। अभी भी मैं आपकी परमिशन लेकर सर मेरा तो शुरू में मैंने परमिशन दे नहीं। दिया आपको, जो बोलना बोलिए सर। नहीं बिल्कुल नहीं, जो बोलना नहीं है। अब जैसे तलहा रशीदी साहब ने एक सवाल किया कि मुसलमानों की स्थिति क्या है, अब उस पे करण साहब पहुंच गए 400 साल पहले। व्हाई डोंट यू टॉक फॉर अबाउट टुडे, आज की बात करिए। आप औरंगजेब और वो बिलीव करते हैं उनकी बात पे, अभी उन्होंने सवाल पूछा कि मुसलमान ऐसा सोच रहा है, उस पे डिस्कस करते हैं ना।
औरंगजेब की बात किए बगैर क्यों ये पूरा टॉपिक मुसलमानों से जुड़ा हुआ पूरा नहीं हो पाता है, उस पर डिस्कस करते हैं। आप भी आइए, अपने विचार रखिए। आप तुरंत 400 या आप 200 साल 1947 की बात करेंगे, 2047 की, या 300 साल पुराना कोरिलेट कर देंगे कि आप औरंगजेब को डिफेंड कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है औरंगजेब को डिफेंड। लेकिन आप ऐसा टिपिकल सवाल बताऊं नहीं मैं कंप्लीट कर लूं। उसके बाद अगर तलहा रशीदी ये कह रहे हैं कि सिचुएशन इज पैथेटिक टुडे, यू आर टॉकिंग अबाउट 200 इयर्स, अब 200 साल पुरानी बातों को आप खोद रहे हैं। ब्रिगेडियर उस्मान का नाम लिया आपने, ब्रिगेडियर उस्मान की मजार किन लोगों ने तोड़ी थी पता है आपको? ब्रिगेडियर उस्मान का रिस्पेक्ट आप करते हैं करण भाई? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। राइट विंगर्स सुनिए, करण भाई सुनिए, राइट विंगर्स ने ब्रिगेडियर उस्मान की मजार तोड़ दी थी रात में। आप अप्रिशिएट करेंगे इसको? बिल्कुल नहीं करूंगा, पर मुझे फैक्ट तो राइट विंगर को सपोर्ट करते हैं आप, राइट विंगर को। सुनिए, फैक्ट दिखाओ बिल्कुल दिखाइए। चलिए न्यूज दिखाता हूं आपको। फैर और इनकी टीम, अगर आप सही कह रहे हैं तो गलत है भाई। 100% सही कह रहा हूं। अब सुनिए जो ये यति नरसिम्हानंद है, अभी 10 या 20 दिन पहले एपीजे अबुल कलाम की पॉलिसीज को, उनके किए गए हुए कामों को खुलेआम क्रिटिसाइज कर रहे थे राइट विंगर्स, वो भी हैं, और वो तो एक्सट्रीमिस्ट कहेंगे उसको, यति नरसिम्हानंद को, दिन रात। तो जो 2-3 नाम आप देते हैं, कहते हैं ना कि इनके पीछे, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। आप 2-3 नाम, अशफाक उल्ला खान, इनके नाम से मुरादाबाद में एक चौराहा था, बदल दिया गया। आप बड़ा राइट विंगर्स का सपोर्ट करते हैं ना, ये सब लोग राइट विंगर्स हैं। आप ब्रिगेडियर उस्मान से कहते हैं उनकी तरह बनो, उनकी मजार लोग कौन है? आप राइट विंगर का सपोर्ट करते हैं। कलाम को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप कहते हैं यही राइट विंगर्स हैं, बीजेपी के हो, बजरंग दल के हो। तो मैं ये कह रहा हूं, आप कहां लेके जाना, मुसलमान किसके साथ खड़ा हो? अब मैं कहा इसमें कंट्रोल, व्हाई आर यू आस्किंग मी? इट्स फ्री फॉर ऑल। बोलने दीजिए भाई दूसरे को। अब मैं बोलिएगा, अब मैं बोलता हूं। देखिए, औरंगजेब पे मत जाइए। नहीं, औरंगजेब पे जाना क्यों पड़ता है, मैं अब ये बताने जा रहा हूं। मत जाइए। जब ज्ञानवापी, एक सेकंड, जब ज्ञानवापी की बात होती है, हमारी हिंदू अस्मिता उसके साथ जुड़ी है, तो आप लोग सब खड़े हो जाते हैं औरंगजेब के साथ। भाई आप कहते हैं ठीक किया उसने, काशी विश्वनाथ तोड़ा 1669 पे, फिर ये बहस होगी ना। संभल में जब इंस्पेक्शन के लिए होती है, देखिए अब इट्स अ लाई, अब मुझे कोट करना पड़ेगा मसीर आलमगिरी, यहां से डिबेट शुरू होती है। जब संभल में इंस्पेक्शन होता है तो आपके लोग वहां पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, पुलिस से मुठभेड़ करना स्टार्ट करते हैं। मुझे बताना पड़ेगा फिर हिस्ट्री में जाके वो हरिहर मंदिर था। आप क्यों हिंदू अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं? आप एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात करते हैं। जिस दिन डॉक्टर कलाम का नमाज़े जनाजा था, उसी दिन याकूब मेमन का था। लोग याकूब मेमन पे गए, एपीजे अब्दुल कलाम पे नहीं गए। तो मेरा सवाल उठेगा ये भाई, आप एक जगह पे पहुंचिए, तो क्या होता है? आप एक जगह पे पहुंचिए, फिर हम इश्यूज डिस्कस करें। आप क्यों हम हिंदुओं को ठेस पहुंचाते हैं इन लोगों का नाम लेके? निखिल, why should people not talk about Aurangzeb? What is the problem? If he was a bigot, let's call him out. So with that, Pranesh, let us call him out. And Pranesh, see, the thing is that every single person sitting on this panel has called out the tyranny and the religious extremism that Aurangzeb propounded during his rule. All of us have. But the point is, he was somebody who died 300 years ago. Why should I be discussing about him? Why should I rather not talk about the mandirs being broken by the RSS in Jhandewalan right now, or the mandirs that were broken in Varanasi a couple of years ago, or the mandir in Andhra Pradesh which is being used as a Aurangabad's name was changed. Nikhil, do you know the Congress chief of Maharashtra? The Congress chief of Maharashtra protested when Aurangabad's name was changed to Sambhaji Nagar. Debt traps because they are not being maintained. You are the problem. You need to understand. Or pollution which has made Delhi the capital city of the country. No, but look, Karan is asking you something. Ravi sir, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आप म्यूट पे नहीं है सर, आप जो बोल रहे हैं वो सुनाई दे रहा है। If you still choose to talk over people, you can. कोई रोक नहीं रहा आपको, जो मन है आप बोलते रहिए अपना। उधर आप विंडो में हैं, जो बोलना है आप बोलिए। अब मेरे कंट्रोल में कोई नहीं है, सब अपने अपने मन से बोल रहे हैं। निखिल 5 सेकंड लूंगा आपके। I want to talk about the two important Nikhil, 5 seconds. Aurangabad's name was changed to Sambhaji Nagar. Baba Saheb Thorat, the Congress Maharashtra chief protested. इसका जवाब दो निखिल, इसका जवाब दो। औरंगाबाद का जब नाम बदला, why did Congress protest? Nikhil, that's a fair question.
Why That's should the the biggest Congress fellow of protest this government. when Aurangabad's I want name to was talk changed? about- टू संभाजी नगर। हाजी I want to रंगरेज, talk about the एक मिनट, 88 हाजी hours रंगरेज war. साहब बोलेंगे। हाजी The रंगरेज Civil साहब, War. हाजी रंगरेज साहब, औरंगजेब के बारे में क्या ख्याल है आपके? Mr. Donald ये तो Trump आलमगीर मानते हैं उसको। नहीं, all of that. बड़ा जननायक कौन था? What did we achieve and what we lost? अरे सुनिए पन्नेश भाई, आज के मुसलमानों से मुगलों को जोड़ना बिल्कुल भी गलत है, और ना कि आज के मुसलमान मुगलों की कोई बात करते हैं। मुगलों का नाम इतना हम नहीं लेते जितना राइट विंगर लेते हैं और भाजपा के लोग लेते हैं, क्योंकि उनका एक एजेंडा सेट होता है राजनीति में। हम तो लगातार मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं, और अब भी हमने पूरी डिस्कशन में अभी तक किसी ने भी औरंगजेब, पाकिस्तान, मुस्लिम लीग और बांग्लादेश, पता नहीं कहां की बातें कोई मुसलमान नहीं करना चाहता। मुसलमान चाहता है देश कैसे आगे बढ़े, हम लोग कैसे आगे बढ़े, किस तरीके से हाजी रंगरेज साहब, ये शुरू इसीलिए हुआ क्योंकि ताला भाई ने बोला कि इंडियन मुस्लिम जो है एक तरह से उस पर ज्यादती हो रही है। मुझे ये बताइए कि जैसे बांग्लादेश है, फॉर एग्जाम्पल, एवरीबॉडी इज प्राउड फॉर एग्जाम्पल कलाम, एवरीबॉडी बांग्लादेश में अगर आपको लगता है नहीं जाती हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन आज हो रही है नहीं हो रही उस पर बात करते हैं ना। नहीं, मैं आज का ही बात कर रहा हूँ, आज का ही बात कर रहा हूँ निखिल। हाजी रंगरेज साहब, आपको लगता है कि देश में माइनॉरिटीज पे, खास करके जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके साथ सही नहीं हो रहा है, और आपको लगता है अगर सही नहीं हुआ तो कहीं और का रुख करना चाहिए, आपको कहीं और जाना चाहते हैं आप? आपको लगता है कि कहीं अगर यहां जस्टिस नहीं मिल रहा है तो कहीं और हम जा सकते हैं? भाई धरती को हमने चुना था खून पसीना देकर, वी आर हियर बाय चॉइस। ये सब मत कहिए प्रणेश भाई। अरे तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें अधिकार मिले हुए गलत बात है प्रणेश भाई। नहीं ताला भाई, तो मैं किसी दूसरे देश में थोड़ी भेज रहा हूं। मैंने तो बोला कहीं जाना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, आप अपने मन की बात क्यों रख रहे हैं यहाँ पे? नहीं, एक मिनट देखिए ताला भाई, ये आप फंस गए। मैंने तो नहीं कहा कि किसी दूसरे देश में चले जाइए, मैंने बोला कहीं जाना चाहते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं आप, यूनाइटेड नेशन जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना चाहते हैं, लेकिन आपने वही बोल दिया जो आपके मन में था। आपके मन की बात अब बाहर आ रही है। हाजी रंगरेज, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, nowhere they will go. Dirty on the last day of the year. They will not go anywhere. हाजी रंगरेज, not international court of law. देखिए पन्नेश भाई, जिस तरीके से आपने अभी कहा, हमारा जन्म यहाँ हुआ है और हम मरेंगे भी हैं, और इसी मिट्टी में हम दफन होंगे। और जिस तरीके से लगातार मुसलमान हो, ईसाई धर्म के मानने वाला हो, दलित समाज के लोग हो, उन्हें जिस तरीके से इस देश के अंदर लगातार टारगेट किया जा रहा है 2014 के बाद से, ये मुद्दा देश का मुद्दा था, है और रहेगा। और हम लगातार जिस तरीके से भी फिलहाल के दिनों में 25 दिसंबर आया था क्रिसमस पे, किस तरीके से आपने देखा होगा चर्च में जाकर, मॉलों के अंदर जाकर, जिस तरीके से जय सिया राम का नारा लगाकर वहां पर किस तरीके से अर्थव्यवस्था पैदा की गई, उसी तरीके से आज देश के मुसलमानों के साथ भी वही माहौल इस देश के अंदर बना हुआ है। और ये एक आइडियोलॉजी के लोग क्या बोल रहे हो? अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी होती है, क्या बोल रहे हो आप? नहीं, कोई बात नहीं। अराजकता, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही मेंट, निखिल, यू अंडरस्टैंड व्हाट ही मेंट, but you can't answer my simple question. No, I'll tell you the problem. मैं जब सीधा सवाल पूछता हूँ, देखिए तारिक भाई, मैं निखिल को सीधा सवाल पूछता हूँ, वो उसका जवाब नहीं देते। यहाँ पे हाजी साहब के मन की बात वो समझ गए, वो बोल रहे हैं अर्थव्यवस्था, ये बोल रहे हैं अराजकता। अर्थव्यवस्था और अराजकता में कितना डिफरेंस है ये हाजी साहब को भी नहीं पता है। हाजी साहब, मुझे ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स है, जो भी आपने कहा जो चर्च में वैंडलिज्म हुआ, वो बिल्कुल गलत है। जिन्होंने किया उनको जेल होनी चाहिए, सबसे जो कड़ी सजा है हमारे कानून में, संविधान, वो होनी चाहिए। और जो उनको अरे नहीं होती, इसीलिए ठीक है, तो इसीलिए मैंने पूछा, अगर आपको लगता है कि कानून है इस देश में, क्या बोला? दो तरह के कानून है ना। कौन से दो तरह के, कौन से कानून है? हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुसलमानों के लिए अलग है। मैं बताता हूँ, सिविल बिल्कुल, उसका घर, इसीलिए यूसीसी चलता है, मैं सजा मिलती है। अब आप देखिए, एक तरह का कानून सजा मिलती ना, वो ये सही कहा इन्होंने, ये इन्होंने सही कह दिया प्रणीत। दो तरह के नहीं होने चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हाजी साहब ने आज बड़ी बात कर दी भाई। देखो 2025 के एंड में आते आते तक इन्होंने रोशनी देख ली, एक चीज यूसीसी होना चाहिए, सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड इन द एंटायर कंट्री। निखिल फंसा हुआ। करण माय गुड फ्रेंड, माय गुड यंग फ्रेंड, डू यू वांट यूनिफॉर्म सिविल कोड? निखिल ने जो प्रिंट आउट सामने रखा है, निखिल वो ऑर्डर वाइज जा रहे हैं।
निखिल को लग रहा है कि अभी जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक मैं दूसरा प्रिंट आउट नहीं उठाऊंगा। हाजी साहब, आपने जो कहा दो तरह का कानून, मैं आपके साथ हूं। ये दो तरह का कानून कांग्रेस ने बनाया था, ये गलत है। आप बोलिए देश में एक कानून होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक तरह का कानून होना चाहिए, हिंदुओं के लिए भी सेम और दूसरे धर्मों के लिए भी सेम। बोलिए होना चाहिए। जी मानते हैं कि नहीं? नहीं, रवि जी पे जाए। हाजी साहब, होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड? सर अभी मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, उत्तराखंड में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया गया, उसमें से आपने आदिवासियों को बाहर निकाल दिया, तो कहाँ यूनिफॉर्म कहाँ बचा यूनिफॉर्म सिविल कोड? होना चाहिए आपने ना। एक तबके को हटा दिया। तो आप बोलिए ना, सबको एक साथ। एक राजनीतिक जितने हाजी रंगरेज साहब, आप बोलिए सबको एक साथ डाल के देश में एक कानून होना चाहिए। ऊपर खेलती है। नहीं वोट बैंक सर, आप बोलिए ना, जो भी आप बोल तो दो, एक बार आप बोल के देखो। वो देखिए ना, आपने बोला देश में दो कानून है, अंधे हो जाते हैं आप लोग। देखिए ये नफरत में अंधे हो जाते हैं भाई लोग। करण वर्मा भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बढ़िया हैं, उनके विचार बहुत अच्छे हैं, मगर जैसे ही बात हिंदू मुसलमान की आती है, वो जो है राइट विंगरों के साथ खड़े हो जाते हैं। ये राइट विंगर मतलब क्या होता है? विंगर को बेल मिल जाती है। नहीं हाजी, मैं भी जानना चाहता हूँ। आई थिंक 2-3 लोगों ने, और ताला भाई भी बहुत राइट विंगर कर रहे हैं। विंगर क्या होता है? नहीं, हाजी साहब, सेंगर के छूटने पे लड्डू बांटते हैं। हाजी साहब के रेपिस्ट को माला पहनाते हैं। वो निखिल हाजी साहब का भी आज जवाब वही देंगे। राइट विंगर वो होते हैं, बोलते हैं जिन्होंने समर्थन हाजी साहब को बोलने दीजिए। हाजी साहब बोल रहे हैं, हाजी साहब की आवाज को दबाने की कोशिश ना करें। हाजी साहब आप बोलिए, राइट विंगर कौन होता है? राइट विंगर वो होते हैं जो कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत होती है तो खुशी के लिए लड्डू बांटते हैं, फिर जब सजा पे उनकी रोक लगती है तो वो आई सपोर्टिंग लिखते हैं कि आई सपोर्ट विद ये सेंगर। ठीक है, एक मिनट हाजी साहब, एक मिनट दूसरी बात है, एक मिनट हाजी साहब, ऐसा जब वो छूट के आते हैं उन्हें फूल माला पहनाते हैं। सुनिए, ये जो अनम्यूट एडिशन है उसमें मेरा सवाल तो सुन लीजिए कि मुझे म्यूट कर दिया आप लोगों ने। सवाल तो सुनिए मुझे। चलिए मैं समझ गया। आपने बोला राइट विंगर मतलब ये होता है। अब मुझे ये बताइए, जो लोग ये कह रहे हैं कि तुम जितने हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकलेगा, अफजल तेरे कातिल जिंदा है, ये कौन से विंगर हैं? ये क्या है? विंगर है, लूजर है, ये क्या है? इनका क्या नाम देंगे आप? हम इनका समर्थन कभी नजर नहीं, वो तो ठीक है, समर्थन तो आप बाद में कीजिएगा। ये है क्या? समर्थन ना करने इनको कौन सा विंगर बोलेंगे? कभी एबीपी वालों ने खुद लगाया। ये जो भी लोग हैं, हम तो इनका नाम भी लेना नहीं चाहते। किसका नाम नहीं लेना चाहते? वालों के साथ ना कल थे, ना आज है, ना कभी होंगे। किसका नाम नहीं लेना चाहते आप? बाटला हाउस में जो आतंकवादी मरे थे, आप उनका नाम लेना चाहते हैं? बाटला हाउस में जो आतंकवादी मरे थे, आप तो वहीं आसपास कहीं रहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, आप ये कहिए ना, बाटला हाउस में जिनका जो आतंकवादी मरे थे, आप नॉर्थ ईस्ट नहीं, आप पहले उसका जवाब तो दीजिए हाजी साहब। मैं कह रहा हूं, मैं एक तो ओखला में नहीं रहता, मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहता हूं। कोई बात नहीं, दिल्ली में ही तो है बाटला हाउस। क्या आप क्या खाली उसी? ये तो फिर आपने वैसे ही बोल दिया जैसे उस दिन वो प्रोफेसर स्वामी कह रहे थे कि आप इसकी बात क्यों कर रहे हैं, आप थे क्या उस समय? आप बाटला हाउस की बात करिए ना, जो आतंकवादी मरे थे, लोगों ने कहा कि ये फेक एनकाउंटर है। कहां है फेक? कौन से अदालत ने कहा है फेक है? जुडिशियल इंक्वायरी हुई कहां उस एनकाउंटर की? इसी बात की तो डिमांड थी कि जुडिशियल इंक्वायरी हो। आज भी हम डिमांड कर रहे हैं। आप बताइए जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं हुई इस एनकाउंटर की? ताला रसादी, अयोध्या केस में फैसला तो सुप्रीम कोर्ट से आया ना, लोग तो उसको भी नहीं मानते। अब बोलिए, उसमें भी जुडिशियल इंक्वायरी, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अफजल गुरु के। ताला रसादी, ताला भाई देखिए, आप डिनायल में रह सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, देखिए सच्चाई प्रणेश, मेरा एक सवाल आपसे प्रणेश, आज फेयर एंड फ्रैंक डिबेट हो रही है, इस डिबेट में भी एक सवाल आया, मैं उम्मीद करता हूं कि ईमानदारी से जवाब देंगे। शुरू में इस डिबेट में भी किसी पैनलिस्ट ने कहा कि आप अपोजिशन की आवाज दबाते हैं। मैं अक्सर देखता हूं, हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, इसे तोड़ भी दीजिए आप, कि जब कोई अपोजिशन, हम लोग कोई आवाज, कोई बात रखते हैं, तो हम जो बीजेपी का पैनलिस्ट होता है या फिर जो राइट विंग इकोसिस्टम के पैनलिस्ट होते हैं, उनसे ज्यादा आप गवर्नमेंट को ज्यादा आप डिफेंड करने लगते हैं, ये आरोप लगते हैं। आप भी राइट, ये जो आरोप है, ये जो जनरल परसेप्शन बना हुआ है, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, जनरल परसेप्शन बना हुआ है, इसे तोड़ने के लिए टाइम्स नाउ क्या करेगा? ये हम लोग कहते हैं पब्लिक के बीच में कि एक जनरल परसेप्शन बना है कि अब जवाब तो सुन लीजिए। परसेप्शन ये देखिए, करने लगते हैं। अरे जवाब तो ले लीजिए ताला भाई। वो तारिक भाई भी कुछ बोल रहे हैं, चलिए तारिक भाई की भी सुन लेता हूं, उसके बाद में जवाब देता हूं। तारिक भाई बोलिए।
मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं तलहा भाई हमारे कि टाइम्स नाउ इसको तोड़ने के लिए करेगा क्या? अरे टाइम्स नाउ ने ही प्रणेश भाई को बैठाला है डिफेंड करने के लिए, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं तो मुझे हटा देना चाहिए, आप बोलिए तो मैं बंद कर नहीं दूंगा। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, आपको क्यों हटाया जाएगा? बहुत अच्छा है। अच्छे सवाल पूछे हमारे भाइयों ने। जरा मैं परसेप्शन मुझे जरा इजाजत देंगे बोलने की? जरा देखिए, तारिक साहब ने भी और तला जी ने भी बहुत बढ़िया सवाल पूछा। मैं इनसे बस एक ही चीज कहूंगा, आज से करीब 15-20 दिन पहले 2 डिबेट्स देख लीजिए निकाल करके। एक इंडिगो पे, जब सरकार ने एकदम हालत खराब थी, किस तरह से प्रणेश ने उनकी ऐसी तैसी करी थी, मैं बस बोलना नहीं चाहता हूं, आप देख लीजिएगा वो। और बांग्लादेशी हिंदुओं को लेके जब बीजेपी से कड़े सवाल पूछने की बारी आई थी, आज मैं ये बात कह रहा हूं, हमारे सवाल, मेरे भी पर्सनली भी, प्रणेश के और इनके जो सवाल थे वो आप जरा देखिएगा, जवाब आप देखिएगा वो। आप लोगों ने इतने तगड़े सवाल नहीं पूछे थे, हम लोगों ने पूछे थे। नहीं, ये देखिए ताली वाली बात नहीं है। देखिए ताला भाई, अगर निखिल जैन, देखिए अभी शुरू में, अब तब तो आपने ताली नहीं बजाया जब हाजी रणरेश का जवाब निखिल जैन दे रहे थे। वो यहाँ पे बैठे हुए, वो सुन रहे हैं, वो भी पैनल पे रहते हैं जैसे आप लोग हैं। आप लोग, मैं बता देता हूँ ना, मैं बता देता हूँ। आप जो कह रहे हैं कि परसेप्शन बनी हुई है, सर मैं यहाँ पे फैक्ट्स के साथ बैठता हूँ। जो मैं बोलता हूं, आप या तो बोलिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं मान लूंगा। अगर आपको लगता है कि चलिए मैंने टीवी पे आपको म्यूट कर दिया, सपोज तारिक भाई कुछ पॉइंट बोल रहे हैं और मैंने सोचा कि नहीं, समाजवादी पार्टी की आवाज को मुझे दबाना है, मैं म्यूट कर दूंगा, तो लोग सोशल मीडिया पे लिख सकते हैं कि देखिए ये पूरा वीडियो तारिक भाई को बोलने नहीं दिया एंकर ने, और प्रणेश जो शो चलाते हैं वो झूठ बोल रहे थे। तो कोई एंकर किसी भी चैनल में झूठ बोल के तो रह नहीं सकता। लेकिन जहां तक आप मेरे सवाल से अगर आपको दिक्कत है तो सर इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो औरंगजेब पे भी सवाल पूछूंगा। मैं करण की बात का जवाब दे दूं, मैं करण की बात का जवाब दे दूं। प्रणेश राइट विंग के प्रोक्लेम्ड करण भाई बैठे हुए, उन्होंने आपसे पहले जो देख रहा हूं, वैसे ही जब सवाल होता है तो आप डिफेंस में आ जाते हैं। आपको मॉडरेटर रहना, यू शुड बी न्यूट्रल। मेरा सवाल बस इतना था, अगर आपको लगता है आप न्यूट्रल न्यूट्रल नहीं हो सकते ना। अगर आप बोल दो अमेरिका में बैठे हैं, आई एम विद फैक्ट्स, इसमें न्यूट्रल प्रणेश, अगर आप बोल दो हम अमेरिका में बैठे हैं, प्रणेश न्यूट्रल नहीं हो सकते। प्रणेश को फैक्ट बोलना होगा, हम हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं भाई। तारिक भाई कुछ बोल रहे हैं, ज्यादा समय नहीं आए थे, तो मार्च में बैठे हैं, लास्ट 30 सेकेंड। मैं ये कहना चाहता हूं कि मीडिया क्या है? मीडिया उनकी आवाज है जिनकी आवाज को बल नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता। अभी प्रणेश ने 2 एग्जाम्पल, इन्होंने, करण भाई ने 2 एग्जाम्पल दिए कि प्रणेश ने मुद्दे उठाए जो जनता के थे, बहुत अच्छी बात है। 365 दिन प्रणेश आप शो करते हो, मतलब कि 363 दिन आप बीजेपी के सपोर्ट में खड़े रहोगे। अरे ये तो 2 एग्जाम्पल दिया तारिक भाई, और भी शो है जहां लगे। एक मिनट देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं, मैं मंकी बैलेंसिंग नहीं करता हूं कि मैंने आज यहां सवाल पूछा राहुल गांधी को तो मैं इधर यहां बीजेपी, जो सही है उस पर सवाल पूछूंगा, वो पार्टी कोई भी हो। देखिए, और ये नहीं कि तीन डिबेट में निखिल जैन को सवाल पूछा तो अभी जो करण वर्मा है उनको जब सवाल होगा तब उनको भी पूछेंगे, 5 दिन लगातार पूछेंगे। तो ऐसा नहीं। अब हमारे पास समय खत्म हो गया, आज का जो अनम्यूट एडिशन था यहीं खत्म करते हैं। जेवीसी श्रीराम, आई थिंक यू स्पोक द लीस्ट एंड यू वर राइट। You know, now in hindsight you can say that you didn't get to speak at all, but I thank all of you. I wish all of you a happy new year, and I hope to see all of you again with smile on your faces, so that we can have the discourse going. We can agree to disagree. हमें ये कोई जरूरी नहीं हम सब एक ही उस पे आ जाएं कि सब एक ही चीज बोल रहे हैं, लेकिन डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन लड़ाई नहीं होनी चाहिए। But I thank all of you. Thank you.